Good morning, students. I am Namita C. Back with the running chapter that is the Rattrap, which is written by Salma Lagalov. Hope you had a great celebration of Raksha Bandhan. And coming to the story, we had discussed about the paddler who went to the crofter's house and he had stolen 30 kronas and then went to the forest. And there he found the ironworks and he entered Ramastu ironwork and he decided to spend his whole winter night in this ironworks. Then actually there was the emergence of the owner of the ironworks and he called him as Niels Olf and because he thought that the paddler was his old friend and because of the bad or the pathetic conditions he might be looking like a rat picker. Okay, then he persuaded him to move on to his house for Christmas celebration, but the paddler, as he knew that he was actually a thief and that is why a robber, so he just actually ignored him to move to his house. Then the ironworks master, he sent his daughter Adla Wilmanson and he actually sent Adla to persuade or to influence the rat trapper to come along with her. Okay, now let's see that Adla was successful in taking him to her house or not. Let's see what happened. The stranger stretched himself out on the door and lay with a piece of a pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. Now, so what happened that जब एडला एंटर हुई आयरन वर्क्स में तब क्या हो रहा है कि पहले जैसा ही सब कुछ काम चल रहा है और जो रेड ट्रैपर है उसने अपने सिर के नीचे एक पिग आयरन का छोटा सा पीस जो है वो एज अ पिलो उसने लगा लिया है उस हेड के नीचे और उसने जो अपनी हैट है वो अपनी आइज पे पुल डाउन कर ली है क्योंकि वो क्या चाहता है, सोना चाहता है अब. एज सून एज अ यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम ही वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड. तो जैसे ही मतलब यंग गर्ल जो है वो मतलब ने उस यंग गर्ल एडला ने उसे देखा सो जो उसके पास आई है उसने एक्चुअली उसकी हेड जो है वो थोड़ी सी लिफ्ट करी. द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन. तो जो मैन जो है वो क्या कर रहा था, पैडलर अपनी एक आँख खोल के सो रहा था. ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड. सो एकदम से वो एब्रप्टली उसने जंप करा, एकदम से वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया और उसने डर के मारे एकदम से जंप करा कि किसने मेरी हैट हटाई है. My name is Adla Wilmanson, said the young girl. So she introduced herself that her name was Adla Wilmanson. My father came home and said that you wanted to sleep here in a forge tonight. Then I asked permission to come and bring you home to us. I'm so sorry, Captain, that you are having such a hard time. Now actually both the father and the daughter, what they are actually thinking, that this man he is the captain von Stelle, who actually was the friend of her father, but actually they were wrong, no? Because of the rat picker, because he was looking very in a rash dress and he was just not clean shaved, and that is why they were not able to identify him. एंड सो एडला ने क्या बोला उसको कि मेरे फादर घर पे आए थे और आप यहीं सोना चाहते हो, लेकिन मैं आपको अपने साथ में लेना चाहती हूँ, आपके घर में अपने घर ले जाना चाहती हूँ कैप्टन, और मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि आपका इतना हार्ड टाइम चल रहा है, आप मतलब इतने बुरे दौर से गुजर रहे हैं. She looked at him compassionately. तो उसने उसकी तरफ काफ़ी मतलब sympathetic, compassionately मतलब क्या होता है, kind heartedly, मतलब बहुत sympathetic वे में किसी को देखना, तो उसने उसको काफ़ी sympathy वे में देखा. With her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Either he has stolen something or else he has escaped from jail. तो जब उसने बड़ी प्यार से उसको ये सब मतलब उसकी तरफ देखा तो उसने देखा कि उसकी आंखें जो है रेड ट्रैपर की वो काफ़ी डरी हुई हैं. उसने देखा कि या तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने बहुत मतलब कुछ चुराया है और या फिर वो किसी जेल से भागा हुआ है. शी थॉट एंड एडेड क्विकली, एकदम से उसने सोचा और फिर जल्दी से वो बोली,
You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. तो उसने बोला कि आप चाहें तो वापस जा सकते हैं, सिर्फ क्रिसमस इवनिंग तक आप हमारे साथ रहिए, उसके बाद हम आपको फ्री छोड़ देंगे, आप जहाँ जाते हैं जैसे रहना चाहते हैं वैसे रहिएगा. She said this in such a friendly manner that the Rattrap paddler must have felt confidence in her. तो इतना पोलाइटली जब वो बिहेव कर रही थी तो पैडलर जो था, वो रैट ट्रैपर जो था, उसने एक्चुअली उसको मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं यार इतना प्यार से बोल रही है, चलो मुझे एक शाम जो है क्रिसमस ईव इनके साथ में बितानी चाहिए. इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर मी with me yourself, miss, he said. I will come at once. तो उसने कहा कि ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ, आप मुझे इतने प्यार से इतने रिस्पेक्ट से बुला रही हैं, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, तो मैं आपके साथ में एक बार ज़रूर आऊँगा. He accepted the fur coat with a wallet handed him with a deep bow, threw it over his rags. तो उसने मतलब जो वॉलेट आया था, वॉलेट में सर्वेंट जो एडला के साथ आया था, उसके हाथ में क्या था, फर कोट था ना, तो वो फर कोट वो किसके लिए ली थी, रैट पिकर के लिए, बिकॉज इट वॉज विंटर्स इवनिंग. तो उसने उसको पहनाया उस जो रैट ट्रैपर है उसको, तो उसने भी वो एक्सेप्ट कर लिया और अपने जो रिच्ड से क्लोथ थे, जो फटे पुराने से गंदे से क्लोथ थे, उसके ऊपर उसने वो अच्छा सा जो कोट था फर का वो पहन लिया. एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज. और उसके बाद में कैरेज गाड़ी तक जो है वो पीछे पीछे एडला के चल पड़ा. विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस. तो बिल्कुल भी मतलब है ना उसने ग्रांट नहीं किया कि मतलब जैसे ऑब्वियसली वो आया था तो उन्होंने उसको सहारा दिया रहने का, तो विदाउट एनी नोटिसिंग एनीथिंग, या उनको कोई भी ग्रीट किए बिना वो वहाँ से निकल गया. पैडलर जो रैट ट्रैपर था वो वहाँ से निकल रहा है, और मतलब वो काफ़ी जो ब्लैक स्मिथ है वो काफ़ी सरप्राइज्ड है कि मतलब ये एक्चुअली इस जैसे इंसान को अपने घर ले जा रही है एडला. तो एक झलक में मतलब वो उसको बहुत उसने देखा कि काफ़ी ब्लैक स्मिथ सरप्राइज है, लेकिन विदाउट ग्रीटिंग दैम वो वहाँ से चला गया. बट वैन ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉर बोर्डिंग्स. तो जब मतलब है ना उसके फार्म हाउस पे वो जा रहा था तो उसको ऐसा मतलब अजीब सी फीलिंग आ रही थी. इविल फॉरबोर्डिंग्स मतलब क्या होता है, फॉरबोर्डिंग्स यू कैन से दीज आर प्रिडिक्शंस, है ना, यानी हम कहते हैं ना पहले से हमें पता चलता है, प्रिडिक्ट हो जाता है, तो उससे बड़ी इविल यानी बैड है ना, तो बैड प्रिडिक्शंस हो रहे थे, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे लग रहा था कुछ बुरा होने वाला है उसके साथ. Why the devil did I take that fellow money? He thought. Now I'm sitting in the trap and will never get out of it. तो अपने आप को बोल रहा है कि क्यों मैंने मतलब ऐसा क्या शैतान मैं बन गया था कि मैंने क्रॉफ्टर के पैसे चुरा लिए, और अब मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपने आप ही इस ट्रैप में, इस जो जाल है उसमें फंस चुका हूँ, और मैं मतलब बिल्कुल अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, और अब मैं उससे काफ़ी निकल ही नहीं पाऊँगा कभी, क्योंकि चोरी की है उसने. The next day was Christmas Eve. The next day Christmas Eve थी, and when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. So next day Christmas Eve था, और आयरन मास्टर जो है वो डाइनिंग रूम में बैठा है, और वो एक्चुअली ब्रेकफास्ट के लिए, और वो अपना जो फ्रेंड है उसको, उसके जो रेजिमेंट का उसका फ्रेंड है उसको मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो भी उसके साथ आके ब्रेकफास्ट करे. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter. Little flesh on his bones मतलब कि वो काफ़ी दुबला पतला, उसे अच्छे से खिलाया पिलाया जाए जिससे कि उसको थोड़ी हेल्थ उसकी ठीक हो जाए. Who was busy at the table? तो एक्चुअली डॉटर उसकी ब्रेकफास्ट टेबल पे बिजी थी, तो वो उसको बोल रहा है, डॉटर को उसके फादर बोल रहे हैं कि हमें पहले जो हमारा फ्रेंड आया है ना रेजिमेंट से, उसको मतलब थोड़ा सा अच्छा सा खाना पिलाना चाहिए जिससे कि उसकी हेल्थ थोड़ी सी ठीक हो जाए. एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स. और उसके बाद हमें देखना है कि
उसे हम किसी काम पे लगा दें, जिससे कि क्या है कि पूरे दुनिया में जो ये रैट ट्रैप बेचता फिर रहा है वो एक्चुअली ये बंद कर दे, और हम वो एक्चुअली चाहते थे उसकी कंडीशन को वापस से इम्प्रूव करना, है ना। तो इसलिए वो दोनों जो डाइनिंग टेबल पे है वो बातें कर रहे हैं। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. So actually वो काफ़ी मतलब queer मतलब क्या होता है, strange, है ना, काफ़ी विचित्र। सो इट इज़ क्वेयर दैट, क्यों तो बहुत स्ट्रेंजफुल है कि जो थिंग्स हैं वो उसके साथ में कितनी मतलब वो कितना उसका स्टैंडर्ड डाउन हो गया है, कितने हालात उसके बुरे हो गए हैं, और मतलब वक्त जो है उसका काफ़ी बुरा सा चल रहा है, ऐसा एडला ने बोला। उसने बोला कि लास्ट नाइट जब उसने मतलब उससे वो मिली तब एक्चुअली उस पैडलर के पास में जो हम जिसे वो कॉमरेड समझ रहे हैं, रेजिमेंटल कॉमरेड, तो उसके पास में कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए कि वो एक एडुकेटेड पर्सन है। मतलब उसको देख के लग ही नहीं रहा था कि वो एक पढ़ा लिखा इंसान है। You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, and you will see something different. उसने बोला कि हाँ तुम थोड़ा पेशेंस रखो, जैसे ही उसे अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनाए जाएंगे, क्लीन शेव करा जाएगा, तुम उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट देखोगी, फिर तुम्हें लगेगा कि ये कुछ एडुकेटेड मैन जैसा रिजेंबल कर रहा है। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड, तो लास्ट नाइट तो खुद ही बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था क्योंकि उसका वक्त अच्छा नहीं चल रहा, उसके कपड़े अच्छे नहीं थे, वो क्लीन शेव नहीं था, उसकी बहुत बुरी हालत थी, खाने को कुछ नहीं था, तो इस कारण वो खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, तो जो उसके गंदे कपड़े हैं उसके साथ ही उसके जो गंदे मैनर्स हैं, यानी कि जो तुम देख के आई हो लास्ट नाइट, वो सब उतर जाएंगे एक बार वो अच्छे से नए मतलब न्यू ड्रेस क्लीन ड्रेस पहन लेगा, अच्छे से क्लीन शेव्ड हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, देन यू विल सी कि वो बहुत अच्छा इंसान दिखाई देगा। जस्ट एज ही सेड दिस डोर ओपन्ड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और जैसे ही वो बोला वैसे ही वो जो स्ट्रेंजर था वो वहाँ पर, स्ट्रेंजर कौन है, पैडलर है ना, वो रूम में एंटर होता है। Yes, now he was truly clean and well dressed. अब वो बिल्कुल बहुत साफ सुथरे कपड़े पहने हुए काफ़ी वेल ड्रेस दिख रहा था। The valet had bathed him and cut his hair and shaved him. तो जो सर्वेंट है उसने उसको अच्छा बाथ करवा दिया, अच्छे से उसको नहलाया और उसके बाद में उसके हेयर कट करे, उसको शेव करा। Moreover, he was dressed in a good looking suit of clothes which belonged to the iron master. और उसके बाद में बहुत अच्छा सा गुड लुकिंग उसे सूट पहनाया गया जो कि आयरन मास्टर का था। He wore a white shirt and a starched collar and holed shoes. तो उसने एक वाइट शर्ट पहना हुआ था विद अ स्टैच्ड कॉलर, और स्टैच्ड मतलब स्टिफ्ड कॉलर, जो बहुत ज़्यादा स्टिफ होते हैं कॉलर, है ना, वैसा उसने जो मुड़ नहीं सकते ना इजली, दैट इज स्टिफ, तो ऐसा उसने कॉलर पहना हुआ था और पूरे होल्ड शूज़ यानी पूरे फुल जो शूज़ होते हैं वो पूरे पहने हुए थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। अब इतना अच्छा जो गेस्ट तैयार होके आया है बिल्कुल दूल्हे की तरह, इतना साफ सुथरा, इतना अच्छे से ड्रेसअप होके आया है, ग्रूम क्या होता है, दूल्हा होता है ना, तो उसकी तरह तैयार होके आया है, लेकिन आयरन मास्टर अब उसे देख के बिल्कुल खुश नहीं है। वाई? ही लुक्ड एट हिम विद अ पकर्ड ब्रो। अब उसने उसको काफ़ी, पकर्ड मतलब क्या होता है, रिंकल्ड, यानी सलवटें आ जाती हैं ना, मतलब उसको देखकर एकदम से उसके सिर में सलवटें आ गई फोरहेड पे, कि मतलब उसकी ये क्या हो गया, कुछ स्ट्रेंज थिंग उसे दिखाई दी। And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. अब उसे लग रहा है कि अरे ये तो मतलब अच्छे कपड़े पहन के आ गया, क्लीन शेव है, अब वो उसे पहचान रहा है तो वो एक्चुअली कैप्टन वॉन स्टेले नहीं है। तो अब उसे अपने आप पे थोड़ा रिग्रेट हो रहा है कि जिस आदमी को मैंने फर्नेस के सामने देखा था जो बड़े गंदे से कपड़े पहन के अनशेव्ड टाइप था, तो उसको मैंने पहचानने में गलती कर दी, क्योंकि सच में तो वो कैप्टन वॉन स्टेले या नील ऑर्फ जो था वो नहीं था। बट वॉट दैट नाउ? When he stood there in a broad daylight,
इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फ्रॉम एन ओल्ड एक्विटेंस। तो किसी पुराने जान पहचान, एक्विटेंस मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन, है ना। तो किसी पुरानी जान पहचान वालों को पहचानने में, वो तो रात का समय था तो हो सकता है उससे मिस्टेक हो गई हो, लेकिन अब डे लाइट है, ब्रॉड डे लाइट है, इतना उजाला है और उसको मतलब शेव वेव करके बिल्कुल सामने खड़ा करा गया है, तो उसको देखकर अब बिल्कुल मिस्टेक हो ही नहीं सकती कि ये जो है वो कोई स्ट्रेंजर है एंड ही वाज नॉट कैप्टन वॉन स्टेले। वॉट डज दिस मीन, ही थंडर्ड। तो एक्चुअली उसने बोला कि इसका क्या मतलब है, एकदम से उसने मतलब थंडर्ड मतलब क्या हो गया, जैसे कोई लाइटनिंग, मतलब चिल्लाते हुए, इसका उसने मतलब बड़े गुस्से में बोला, इसका क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटैम्प्ट टू डिसम्युलेट। अब जो स्ट्रेंजर है मतलब उसने कुछ भी छुपाना नहीं चाहा। डिसिम्युलेट मतलब क्या होता है, टू हाइड एनीथिंग, ठीक है। अब उसके पास कोई अटैम्प्ट नहीं था, यानी कोई मौका भी नहीं था, वो क्या छुपाता, सब कुछ तो साफ दिख रहा था। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर, स्प्लेंडर मतलब जो ग्रैंड्योर होता है, या आप कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा भव्य, है ना, तो वैसा जो मतलब जो स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड उसने सोचा कि अब जो मेरा जो ग्रैंडियर है, यानी कि जो जितना एक भव्य जो चीज़ मुझे मिल रही थी, अब उसका एंड हो चुका है, क्योंकि ये लोग मुझे पहचान चुके हैं। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। उसने कहा मेरी नहीं गलती है सर, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीडेड एंड बैग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज। और मैं सिर्फ, मैंने क्या प्रिटेंड किया, मैंने सिर्फ यही प्रिटेंड किया, प्रिटेंड मीन्स टू शो ऑफ, तो मैंने सिर्फ यही शो ऑफ किया कि मैं एक पुअर सा, एक गरीब सा ट्रेडर हूँ, और मैंने सिर्फ प्लीड मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करा, मैंने रिक्वेस्ट करा था सिर्फ उस दिन कुछ एक फॉर्ज में, यानी फर्नेस, वहाँ पर आयरन वर्क्स में एक रात बिताने को, बट नो हार्म हैड बीन डन, लेकिन मैंने कोई भी किसी का कोई नुकसान नहीं किया। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे। और मैं मतलब किसी का नुकसान करना भी नहीं चाहता हूँ, मैं फिर से अपने पुराने घिसे पिटे कपड़े पहन लूँगा और फिर से यहाँ से चला जाऊँगा। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल। अब उसने कहा कि ठीक है, अब थोड़ा हेजिटेट हो रहा है वो। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर। उसने कहा तुम बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं थे, यानी कि ये तुमने कोई मतलब सही ऑनेस्टी की काम थोड़ी ना किया है, क्योंकि तुम्हें तो उस समय बताना चाहिए था, जब मैंने तुम्हें कैप्टन वॉन स्टेले बोला या मेरी बेटी को भेजा तुम्हें लाने के लिए, तब तुम्हें सच्चाई बतानी चाहिए कि तुम नील्स ऑफ नहीं हो, ये सब तुमने नहीं बताया, तुम बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं थे। यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ, तो शेरिफ कौन है, शेरिफ होता है ऑफिसर फॉर कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर, है ना, तो वो जो ऑफिसर है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, तो उसने बोला कि तुम्हें ये एडमिट करना ही पड़ेगा, और मैं मतलब बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँगा कि तुम मतलब इस मैटर में कुछ बोलो, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं उसमें देखते हैं कि तुम क्या बोलना चाहते हो, तुम अपनी क्या सफाई देना चाहते हो। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विद हिज फीस्ट। अब जो ट्रैम्प है वो क्या, उसने आया फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ा और उसने उस टेबल पे, फीस्ट क्या होता है हमारा जो मुट्ठी जो होती है, उसने एकदम से उस पर टेबल पे स्टक किया, यानी गुस्सा होते हैं तो ऑब्वियसली क्या होता है, ये काइंड ऑफ हमारा बॉडी लैंग्वेज है कि उसने आके टेबल पे स्टक किया, टेबल पे मारा। नाउ आई वॉज गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। अब वो स्टार्ट हुआ, उसने बोला कि मैं आपको बताता हूँ आयरन मास्टर, एक्चुअली ये सब क्या हुआ, ये जो दुनिया है वो क्या है, एक बड़ा सा चूहे का पिंजरा है। ऑल द गुड थिंग्स आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग, और जितनी भी एक अच्छी अच्छी चीज़ें तो जो तुम्हें ऑफ़र की जाती है, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, ये सारी चीज़ें, गाड़ी बंगला, ये सब कुछ भी नहीं है, बट चीज़, रेंट्स एंड बाइट्स ऑफ पोर्क। सो एक्चुअली ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है कि तुम्हें एक बेट, एक चारा दिया जा रहा है, चीज़, रेंट्स, रेंट्स मतलब क्या होता है, छिला हुआ, ठीक है, तो छिला हुआ एक पीस है, एक चीज़ है, एंड बिट्स ऑफ पॉक, पॉक क्या होता है, जो पिग का जो फ्लैश होता है उसे हम पॉक कहते हैं,
है ना जो, तो वो मतलब वहाँ पर उस रेट ट्रैप में रखा हुआ है, एक तरह का बेट है और इस चीज़ों में हम फंसते जाते हैं। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, और एक्चुअली जो एक पुअर फेलो है उसको मतलब वो वहाँ जो भी एक गरीब इंसान है उसको क्या करता है, वो ट्रबल में, मुसीबत में डाल देता है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो गरीब इंसान को भी बड़ी अच्छी लगती हैं। अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, गाड़ी बंगला, ये सब हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है। और ये सब एक चारा है, जिस तरह की हम अच्छा अच्छा पॉर्क और चीज़ डाल के एक रैट को इनवाइट करते हैं ना रैट ट्रैप में फंसने के लिए, उसी तरह ये चीज़ें हमें इनवाइट करती हैं और हम उस वर्ल्ड ट्रैप में फंस जाते हैं। और एक अगर गरीब आदमी जो है, जो पुअर फेलो है, वो तो ईजिली इन चीज़ों में फंस जाता है। अगर उसे थोड़ा भी कहीं भी कुछ लालच दिखाई देता है तो वो फंस जाता है। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी इन फॉर दिस देन यू, और अगर पुलिस आती है, शेरिफ मीन्स रिलेटेड टू पुलिस, हम की पुलिस भी हम वर्ड यूज़ दे सकते हैं, तो अगर वो आते हैं और मुझे जेल में बंद कर देते हैं, मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पॉर्क एंड देन यू विल गेट कॉट इन अ ट्रैप। तो अगर आज मुझे पुलिस ले जाती है और बंद करती है जेल में, तो आप भी मिस्टर आयरन मास्टर ये ध्यान रखना कि आप भी किसी समय एक बड़े से पॉर्क के बदले, यानी एक ऐसी चीज़ दुनिया में आप पाना चाहोगे और उसके बदले आप क्या करोगे, इस रैट ट्रैप में फंस जाओगे, है ना। तो आप भी मतलब जो है क्योंकि मैं वो रैट ट्रैप पर क्यों फंसा, क्योंकि उसे उसके लेवल के से ज़्यादा थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन दिखाई दी, उसे लालच हुआ कि ये बड़े लोग हैं, मुझे कुछ दे देंगे, पैसा वैसा ना, कुछ क्रॉनर दे देंगे। तो वो उसको बोल रहा है आयरन मास्टर को कि हो सकता है तुम्हारे लेवल से भी कुछ ऐसा ऊपर हो कि जो तुम्हें पाना हो, तो तुम भी अगर जब उस पॉर्क को लेना चाहोगे, जब तुम उस जो लग्जरियस थिंग्स हैं उसको लेना चाहोगे, पाना चाहोगे, तब तुम भी इस रेट ट्रैप में ज़रूर फंस जाओगे। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर नाउ एंड विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग।